ہیں سب سے پہلے بات کریں گے خاتون کے ساتھ ڈکیتی اور زیادتی کے افسوسناک واقعے پر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 5 رکنی آئینی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ پنجاب کمیٹی ممبران میں شامل ہیں۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر مسعود سلیم کمیٹی ممبران میں شامل ہیں۔ اسی طرح ڈائریکٹر جنرل پنجاب فورنسک سائنس ایجنسی بھی کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ کمیٹی شواہد کی جانچ پڑتال کر کے 3 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ آپ کو بتائیں گجرپورہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ خاتون کے ساتھ ڈکیتی اور زیادتی کا یہ واقعہ تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 5 رکنی آئینی کمیٹی اس حوالے سے تشکیل دے دی ہے۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ کمیٹی کے ممبر ہوں گے اور اسی طرح ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ پنجاب کمیٹی ممبران میں شامل ہیں۔ علی اکبر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی اکبر، 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے گزشتہ رات بھی اس معاملے پہ نوٹس لیا گیا تھا اور صبح بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے جو ہے باقاعدہ طور پہ یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جو پیش رفت ہوگی اس کیس کے حوالے سے اس سے وزیر اعلیٰ آفس جو ہے اس کو آگاہ کیا جائے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کے کنوینئر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت ہیں۔ اس کمیٹی میں جو ہے وہ دیگر ممبران بھی شامل ہیں، جس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ہے، اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہیں اسپیشل برانچ، اس کے علاوہ ڈاکٹر مسعود سلیم ہے جو کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب ہیں، اس کے علاوہ ڈی جی فورینسک لیب جو ہے ان کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے اس کمیٹی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ کیس کے حوالے سے پیش رفت اور اس کے جو ملزمان ان کو گرفتار کر کے آگاہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے آج صبح جو ہے وہ تمام پولیس افسران اور خاص طور پہ آئی جی پنجاب اور سی سی پی لاہور کو جو ہے وہ ہدایت کی گئی تھی کہ اس کیس کے حوالے سے جو بھی پیش رفت ہے اس سے ہر لمحہ جو ہے وہ وان وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سیم کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس کیس کے جو ملزمان ہیں ان کو کسی صورت بھی جو ہے وہ اسٹے نہیں کیا جا سکتا، فوری طور پر ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ وان وزیر اعلیٰ کو رپورٹ کی جائے۔ جی ٹھیک ہے علی اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔ بات کریں گجرپورہ میں خاتون کے ساتھ ڈکیتی اور زیادتی کے واقعے پر۔ آئی جی پنجاب نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے اور ریجنل آفیسر اسپیشل برانچ جہاں زیب نذیر کمیٹی ممبران میں شامل ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار کمیٹی ممبران میں شامل ہیں، جبکہ ایس پی سی ٹی ڈی نصیب اللہ خان بھی کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ انچارج جینڈر کرائم سول لائنس لاہور فضا اعظم کمیٹی میں شامل ہیں۔ اسی طرح چیئرمین کمیٹی مزید ممبران کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ آئی جی کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ زیادتی کا واقعہ سی سی پی او لاہور کی ایک کے بعد ایک منطق۔ سی سی پی او لاہور عمر شیخ کے مظلوم پر ہی سوالات، کہتے ہیں خاتون جی ٹی روڈ سے کیوں نہیں گئی؟ عورت رات کو بچوں سمیت کیوں باہر نکلی؟ خاتون نے گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں ڈلوایا؟ کہانی یہ ہے کہ یہ خاتون اگر آپ کی علم میں ہو تو رات 12:30 بجے ڈیفینس سے نکلی ہیں ادھر جانے کے لیے گوجرانوالہ۔ اب میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلی ہو، آپ سیدھا روڈ لو، جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے اور گھر چلی جاؤ۔ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنے پیٹرول چیک کر دو، کیونکہ اس سارے پیٹرول پمپ نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ مسئلہ تھا ان کا۔ سی سی پی او عمر شیخ کی اپنے بیان کی وضاحت۔ سی سی پی او نے پاکستانی معاشرے، قانون اور حکومت کے رٹ پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ کہا یہ فرانس نہیں جہاں حکومت کے رٹ اور اخلاقیات ہوں۔ خاتون رات کو کیوں نکلی؟ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ سوسائٹی ہماری اس طرح کی ہے، بہنوں والوں، بیٹیوں والوں، آئندہ خیال رکھو۔ اس کی فیملی فرانس کی ہے، اس کا ہسبینڈ فرانس رہتا ہے۔ اس نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے کہ اس کی اورینٹیشن میں فرانس تھا کہ میں یہ اسی طرح کا ہمارا محفوظ معاشرہ ہے، اور معاشرے وہاں پہ صرف لا سے نہیں محفوظ، وہاں اخلاقی قدروں سے محفوظ ہیں، رول آف لا کی وجہ سے محفوظ ہیں، ریٹ آف گورنمنٹ کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اس لیے بچیاں وہاں پہ رات کو ٹریول کرتی ہیں، موٹر ویز پہ کرتی ہیں۔ ان کو سی سی پی او کی جانب سے خاتون پر اٹھائے سوالات پر سینئر تجزیہ کار نسیم زہرا کا سخت رد عمل۔ سی سی پی او کو فوری عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ عمر شیخ صاحب کو
इस पर फायर कर देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ये सुने वो क्या कह रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये इतने गलत ऑफिसर इन्होंने लगाए, इनकी मजाल है कि इन्होंने ऐसी बात की है। इनको तो मैं तो हैरान हूं ये किस तरह के शख्स हैं। शर्म आनी चाहिए और इनको माफी मांगनी चाहिए और इनको इस ओहदे से उठाना चाहिए। कोई हद है, ये कयामत आई है कि एक औरत को रेप किया गया है उसके बच्चों के सामने, और ये कितने वाहियात शख्स हैं, कितने गैर, ये इंसान है, ये क्या इंसान, ये किस तरह की इनकी कदरें हैं, कैसी हिम्मत हुई उन्होंने ये बात की टीवी पे। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, ये रियासत मदीना है जिसका ये शख्स जो आपने पुलिस ऑफिसर लगाए वो क्या बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये औरत का मसला क्या था, 12 बजे गई है रात को। ये इनको शर्म आनी चाहिए। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं कहूँ कि ये कितनी सदमे की बात है, कितने गुस्से की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये ऐसा शख्स लाहौर में लगाया है, ये किस किरदार के शख्स हैं। मुझे इतना अफसोस है, इन पे तो कभी नजर नहीं डाली, इनको देखा नहीं, लेकिन इनके दो फिक्रे सुन के मैं इतनी परेशान हूं कि किसने उनको लगाया इस ओहदे पे। इनको इस वक्त फायर करना चाहिए। जो सीएम पंजाब है उनको सुनना चाहिए ये क्या कह रहे हैं। जो गवर्नर पंजाब है उनको सुनना चाहिए। ये कैसा शख्स लगाया इन्होंने, ये कौन सी ये मुल्क है या क्या कोई जंगल है, ये कैसा शख्स लगाया है। ही शुड बी फायर्ड इमीडिएटली। सीसीपीओ लाहौर के इज्तिमाई ज्यादती का शिकार मजलूम खातून पर सवालात, क्या पता था सीसीपीओ मजम्मत के बजाय खातून को कसूरवार कहेंगे। हामिद मीर की जानिब से ये ट्वीट किया गया। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी और नवीद चौधरी की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। सीईओ साहब जो कुछ कह रहे हैं तो इनसे कतन बईद नहीं है, ये कुछ भी कह सकते हैं। कल को ये कहेंगे कि आपने दुकान खोली तो डकैती तो होनी थी, आप घर से बाहर गए चोरी तो होनी थी। तो ये तो उस माइंड सेट के आदमी हैं। मैंने जब इनका पहला इंटरव्यू सुना एक कौमी चैनल पर तो मुझे इनके लबो लहजे से अंदाजा हो गया। तुम जो वो आप उस फतह के नशे में कि मैंने आईजी का तबादला करा दिया, तुम अब एक जो विक्टिम है तुम उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि इस शख्स के नाम के साथ साहब लगाना जो है वो बहुत गलत बात है। ये साहब कहलवाने के काबिल नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे सामने इस वक्त कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट्स पड़ी हैं, कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसी शख्स के बारे में है, और जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जो प्रोसीडिंग है वो मेरे सामने पड़ी है। सीसीपीओ साहब जिन्हें अभी हफ्ता एक नहीं हुआ है आए हुए, और जो इतने कंट्रोवर्शियल हैं अपनी इब्तिदा में, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया है। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, अगर ये वाकया किसी सिविलाइज सोसाइटी में हुआ होता तो इस वक्त पुलिस नहीं बल्कि पूरे मुल्क की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो है उनके लिए क़यामत बर्पा हो गई होती। ये बेहिसी, ये एपैथी, ये इंडिफरेंस, ये जो है क्रिमिनल। वफाकी वजीर शीरीन मिजारी भी सीसीपीओ लाहौर पर बरस पड़ी। एक ऑफिसर का खातून पर ही इल्जाम लगाना नाकाबिले कबूल है। शीरीन मिजारी जीटी रोड क्यों इस्तेमाल नहीं की, उनकी जानिब से ये कहा गया। रात को क्यों निकली, ये सवाल इंतहाई अफसोसनाक है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती की खबर, गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। सीसीपीओ लाहौर को ओहदे से हटाओ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती की खबर ने सोशल मीडिया सार्फिन को गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा। किसी ने कहा मुजरिमों को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, तो किसी ने कहा मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। खातून से ज्यादती की मजम्मत के साथ साथ ट्विटर पर रिमूव सीसीपीओ भी ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था कि गैर जिम्मेदाराना बयान से मायूसी हुई, लाहौर के सीसीपीओ उमर शेख को जल्द ओहदे से बर्खास्त किया जाए। किसी ने कहा कि सीसीपीओ के बयान से लगता है जैसे वो ये कह रहे हों जाग रहना ते साढ़े ते ना रहना। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाकया ने पाकिस्तानियों के जज्बात को झंझोड़ कर रख दिया है। देखना ये है कि क्या मुजरिमों को गिरफ्तार किया जा सकेगा या ये फाइल भी माजी का किस्सा बन जाएगी। कैमरा टीम के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। मोटरवे पर खातून को बच्चों के सामने दरिंदा सिर्फ अफराद की जानिब से ज्यादती का निशाना बनाए जाने पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, काफ लीग के रहनुमा मोना सिलाही और सीनियर सहाफ़ी हामिद बीर ने सोशल मीडिया पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा, सियालकोट मोटरवे वाकया बदतरीन और खातून की बेहुरमती काबिले मुजम्मत है। उन्होंने हुकूमत से अफसोसनाक वाकया को टेस्ट केस बनाने का मुतालबा किया। अपोजिशन लीडर ने मुतासरा खानदान से इजहार हमदर्दी करते हुए इंसाफ के हसूल की जद्दोजहद में उनका साथ देने के अज़म का भी इजहार किया। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि इज्तिमाई ज़्यादती के वाकया का सुनकर दिल दहल गया। मुआशरती इक़दार में पस्ती का मुकाबला करना बहसीयत कौम
सब की जिम्मेदारी है। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मोनस इलाही ने ट्वीट करते हुए कहा, पंजाब पुलिस ओहदों की कशमकश की बजाय फराइज की बजा आवरी को मुकद्दम रखे। लाहौर रिंग रोड से चंद किलोमीटर दूर गाड़ी में मौजूद खातून की असमत दरी पंजाब पुलिस और मोटरवे पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया है। लाहौर में इज्तिमाई ज्यादती के वाक़या पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का ट्वीट में कहना था, गैंग रेप का शिकार खातून का ख्याल था वो रियासत मदीना में रहती है, इसी गलत फहमी में वो बच्चों के साथ घर से निकल पड़ी। हामिद मीर ने कहा कि खातून को क्या पता था कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। रिंग रोड पर गुज्जरपुरा के करीब डिफेंस की रिहायशी खातून के साथ दौरान डकैती ज्यादती का वाक़या सुबह सदेआम हुआ तो अहले इलाका भी गम ज़दा हो गए। शमाली लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा के मकीन इस बात पर अफसरदा हैं कि उनके घरों के सामने ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया जिसने सब कुछ झंझोड़ कर रख दिया। रिहायशियों का कहना है कि अगर पुलिस 24 घंटे गश्त करे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। बेहतर तो इसी तरह होगी, वो ईमानदारी से काम करें, जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है उसको पकड़ें। उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाए कि वो उसको सॉल्व करें, उस प्रॉब्लम को, जो इलाके में या जो भी जराइम या जो भी चीज़ें पैदा होती हैं वो ख़त्म हो जाए। गुज्जरपुरा के रहायशियों का मजीद कहना है कि महकमा पुलिस के अफसरान और एहलकार इस तरह से अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते जैसे उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस से ठीक कर ही नहीं सकती, पुलिस के पास की गल कोई नहीं, रिश्वत चाहिए वो मिलती पई है। बस अपनी पुलिस ठीक कर सारा माहौल ठीक हो जाएगा, गल तो सीधी जी है। रिहायशियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि से क्राइम कंट्रोल करने के लिए जराइम पेशा अनासर समेत फर्ज शनासी से ड्यूटी सर अंजाम न देने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए कि वो निशाने इबरत बन जाएं। कैमरामैन जमील अहमद के साथ नबील मलिक, सिटी 42। सानह गुज्जरपुरा के बाद शहर में ड्राइविंग करने वाली ख्वातीन खौफो हिरास का शिकार हो चुकी हैं। जैसे जैसे लाहौर शहर की ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही खवातीन ड्राइवर्स की तादाद भी बढ़ गई है। इस दौरान सानह गुज्जरपुरा की इतला शहर भर में जंगल में आग की तरह फैल गई तो दीगर लाहौरी ड्राइवर खवातीन ने भी अपने तहफुजात का इजहार किया। हमें पता है कुछ नहीं होगा, वी नो दैट नथिंग विल हैपन, उनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। मैं तो हैरत है, मुझे हैरत होती है गवर्नमेंट पे कि अभी तक मतलब बड़ा उन्होंने मीडिया में अचानक से इतनी बड़ी न्यूज़ उन्होंने बता दिया मीडिया में, लेकिन एक्शन लेंगे वो नहीं बताएंगे। तीन को बहुत मौत आते हैं। एक तो ये कि क्राउडेड एरिया पे कभी भी गाड़ी रोके तो क्राउडेड एरिया पे रोकें, सुनसान वीरान सड़क हो तो वहाँ पे कभी ब्रेक ना लगाएं, कभी गाड़ी ना रोकें, बेशक कोई हेल्प भी मांग रहा हो। गाड़ियां चलाने वाली खवातीन की अक्सरियत का कहना है कि जब तक शाहराहों पर 24 घंटे पुलिसिंग बेहतर नहीं होती, क्राइम रेट बढ़ता रहेगा। पंप्स नहीं थे, क्या था वहाँ पे उनका इशू होगा, वो बनवाएं वहाँ पे, और फिर पूरी तहफ़्फ़ुज़ उनको प्रोवाइड करें आप ख़वातीन को खासकर, और फिर ख़वातीन को भी जो है ना सेफ्टी मेजर्स जो है उनको पूरा दें कि किस तरह वो अपने आप को हिफाजत कर सकते हैं। जो भी इंतज़ामात होते हैं वो सब होने चाहिए। पंप नहीं था वहाँ पे जिसकी वजह से उस औरत को इतना कुछ होना हुआ, उसके साथ जुल्म, ये गलत बात है। खवातीन ड्राइवर्स ने हुकूमत से अपील की है कि अहम शाहराहों पर खवातीन पुलिस एहलकार भी तैनात की जाएं ताकि उनको अपने मसाइल बयान करने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लाहौरी खवातीन का कहना है कि वाक़े की इत्तला ने उनको बहुत रंजीदा कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि शाहराहों पर सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बनाया जाए ताकि आने जाने वाली खवातीन को मसाइल का सामना न करना पड़े। कैमरामैन जमील अहमद के साथ नबील मलिक, सिटी 42। और अभी आपको बताएं, हाई कोर्ट में साबिक आईजी शेख दस्तगीर के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि सर्विस मामला है, दरख्वास्त गुजार मुतासिरा फरीक नहीं है। जवाब पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का इजहार नाराज़गी, बोले मौके पर दलाइल दें, पंचायती बातें ना करें। अदालत ने आइंदा समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने लीगी MPA मलक अहमद खान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार मलक अहमद खान बोले, दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है, मामला इंतहाई अहम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर केस अहम होता है, कानूनी दलाल दें। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि आपका दरख्वास्त दायर करने का क्या इस्तेहकाक है। मलक अहमद खान बोले, अपोजिशन का मेंबर रुकन असम्बली हूँ। दरख्वास्त गुजार का मजीद ये कहना था कि IG पंजाब की तकर्री पब्लिक सेफ्टी कमीशन की सिफारिश पर नहीं हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलक अब्दुल अजीज ने कहा कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानूनी दलाल दें, अगर ऐसी पंचायती बातें करनी है तो बाहर जाकर करें। हुकूमती वकील अदालत को मुतमिन ना कर सके और
جواب کے لیے مزید مہلت کی استدعا کر دی۔ لیگی رکن اسمبلی ملک احمد خان نے سابق آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کے تبادلے کو چیلنج کرتے ہوئے اسے کالعدم قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ تاہم رجسٹرار آفس نے درخواست کے قابل سماعت ہونے بارے اعتراض عائد کر رکھا ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 14 ستمبر کے لیے ملتوی کرتے ہوئے درخواست کے قابل سماعت ہونے بارے مزید دلائل دینے کی ہدایت کی ہے۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 14 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ میاں شہباز شریف سمیت دیگر 12 ملزمان کو ریفرنس کی نقول فراہم کی گئی ہے، جبکہ رمضان شوگر مل میں حمزہ شہباز کے پیش نہ ہونے پر سماعت 1 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ احتساب عدالت میں نیب کی طرف سے منی لانڈرنگ ریفرنس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، ان کی بیٹی جویریہ شہباز سمیت 12 ملزمان کو ریفرنس کی نقول فراہم کر دیں۔ حمزہ شہباز کو بیماری کی وجہ سے پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت نے سلمان شہباز کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ڈی جی نیب کو وزارت خارجہ سے رابطہ کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے نصرت شہباز کے وارنٹ کی تعمیل نہ ہونے پر دوبارہ سمن جاری کر دیے۔ سماعت کے دوران شہباز شریف نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں منی لانڈرنگ کیس میں ناجائز ملوث کیا گیا ہے۔ 10 سالوں میں ایک پیسہ نہیں لیا۔ شوگر ملوں میں گنے کی مد میں نقصان بھی برداشت کیا۔ عدالت نے کہا کہ جب سماعت شروع ہوگی تو آپ کو بیان کا پورا موقع دیا جائے گا۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف اور ان کی بیٹی کی پیشی پر دھکم پیل بھی ہوئی۔ پیشی کے موقع پر پولیس نے ایم یو کالج سے سول سیکریٹریٹ تک راستے بند کر دیے۔ کسی ایم پی اے اور ایم این اے کو اظہار یکجہتی کے لیے عدالت نہیں جانے دیا گیا۔ کیمرہ مین جعفر بھٹی اور عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ جو گڑھا نواز شریف کے لیے کھودا گیا، اب حکومت کا اس میں گرنے کا وقت آ چکا ہے۔ دن سے زائد اثاثہ جات کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نیب لاہور میں پیش ہوئے، جہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نیب کو اپوزیشن کی اے پی سی مینج کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیب کے چیئرمین سے لے کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ضمیر کے قیدی ہیں۔ نیب کے چیئرمین سے لے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تک جو میرے سامنے آج بیٹھے تھے، یہ سب لوگ جو ہے یہ مجبور ہیں، یہ اپنے ضمیر کے قیدی ہیں، یہ بلیک میل ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف خاندان سمیت اپوزیشن کے خلاف جس طرح نیب متحرک ہے، اسی طرح قانون کے تحت حکومت میں شامل لوگوں کے خلاف جے آئی ٹی بننی چاہیے جو سب کا احتساب کرے۔ اپوزیشن انشاءاللہ تعالی 20 تاریخ کو اپنا متفقہ لاہے عمل جو ہے وہ بنائے گی، اسے اناؤنس کرے گی اور اس ملک کی بہتری کے لیے اور عوام کو ریلیف دلانے کے لیے جو ہے اپنی جدوجہد کا آغاز کرے گی۔ یہ منفی ہتھ کنڈے اور یہ انتقامی ہتھ کنڈے جو ہے یہ اپوزیشن کا ہمارا راستہ نہیں روک سکتے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پارٹی نے نواز شریف کو واپس نہ آنے کا درست مشورہ دیا ہے۔ اپوزیشن 20 تاریخ کو اپنا متفقہ لاہے عمل دے گی۔ کیمرامین سلمان الوی کے ہمراہ ساؤتھ برڈ، سٹی 42۔ آمنہ زائد ساساجات کیس کا معاملہ ہے۔ مسلم لیگ رہنما اظہر قیوم اور مدثر قیوم نہرا کی کل نیب میں طلبی ہے۔ نیب لاہور نے نہرا برادران کو ساساجات کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق نہرا برادران پر پنجاب کے مختلف اضلاع میں سرکاری اراضی پر مبینہ قبضہ کرنے کا بھی الزام ہے۔ نہرا برادران اس سے قبل اثاثہ جات کا ریکارڈ پیش کر چکے ہیں، جس پر نیب ٹیم مطمئن نہیں ہو سکی۔ مہنگائی نے عام آدمی کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ گندم کی قیمت میں اضافے کو جواز بناتے ہوئے آٹا چکی مالکان نے چکی آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ شہر میں چکی آٹا 80 روپے فی کلو تک میں فروخت ہونے لگا ہے۔ شہر میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، جبکہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے والے حکومتی ادارے لمبی تان کر سو گئے۔ غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت میں اضافے کو جواز بناتے ہوئے آٹا چکی مالکان نے چکی آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ چکی آٹا 78 سے 80 روپے فی کلو تک میں فروخت ہونے لگا۔ لاہور آٹا چکی اونرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ گندم امپورٹ کرنے کے باوجود غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس وقت گندم 2400 روپے فی من سے تجاوز کر چکی ہے، جس کے باعث چکی آٹے کی قیمت 74 روپے فی کلو مقرر کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت گندم کی قیمت میں کمی کروائے تو بآسانی چکی آٹا سستا ہو سکتا ہے۔ پہلے سرکاری کوٹا تھا 5 بوری کا، وہ بھی 3 بوری اور وہ 3 بوری وہ بھی نہیں دے رہے، اور وہ تو جب کہہ رہے ہیں ہمیں آرڈر نہیں ہے، ان کے پاس جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے آرڈر نہیں ہے، ہمیں آرڈر آئے گا تو آپ کو دیں گے۔ تو ہم تو اوپن مارکیٹ میں لینے کے والدہ ہے، اوپن مارکیٹ سے ہم کام کر رہے ہیں، اچھی اور معیاری گندم دے رہے ہیں، اور ہم تو اپنے جتنے کوشش کر رہے ہیں اپنے طریقے کم سے کم اس کو دیا ریٹ رکھا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹے سمیت تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے۔
गरीब आदमी जो है वो ज़्यादा परेशान है। मेरे अपने 4 बच्चे हैं, तो मैं जो है बड़ी मुश्किल से अपना घर गुजारा चला रहा हूँ। 1-1 किलो भी आटा ले जाता हूँ क्योंकि महंगाई इतनी है। आटा चक्की मालकान का कहना है कि हुकूमत उन्हें सस्ती गंदम फराहम करे तो वो सस्ता आटा फरोख्त कर सकते हैं। अगर गंदम की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी रहा तो चक्की आटे की कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के 32 मसाइल ढूंढ लिए हैं। गैर कानूनी परिंदों और सदका के गोश्त की फरोख्त, वॉल चौकिंग, ट्रैफिक ब्लॉक और दाखिली रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी समेत दीगर मसाइल सर फहरिस्त हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर के 32 छोटे मसाइल की फहरिस्त तैयार की गई है, जिनके हल के लिए मुतल्लिका महकमों और अफसरान को जामिया प्लान तश्कील देकर काम करने की हिदायत कर दी गई है। फहरिस्त के मुताबिक अस्पतालों के अतराफ में ट्रैफिक, बढ़ती तजावुजात, मंसूबों की बदहाली, भिखारियों और नशइयों की भरमार, माहौलियाती आलूदगी, डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स की कमी, अंडर पासेज और फ्लाईओवर्स की मरम्मत, सड़कों पर साइन बोर्ड्स की कमी, सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स की खराबी, बिजली की नंगी तारें और गैर तसल्ली बख्श सफाई जैसे मसाइल का लाहौरियों को सामना है। आवारा कुत्ते, पब्लिक पार्क्स की तज़ीनो आराइश, ग्रीन बेल्ट्स की बहाली, ग्रेटर इकबाल पार्क की बहाली, सेफ सिटी कैमरों का मौसर इस्तेमाल, थानों की मरम्मत, पुलिस का आवाम से सलूक, संगीन जराइम में इजाफा, पतंगबाजी से हलाकतें, पनागाहों का इंतजाम, बस स्टैंड पर इंतजार गाहों की सूरत हाल, सीवरेज मसाइल, खुले मैन होल्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली भी लाहौर के अहम मसाइल करार दिए गए हैं। शहर में अस्पतालों से इकट्ठा किए जाने वाला फुजला प्लास्टिक दाना बनाने का अमल नहीं रुक सका। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी का बंद रोड पर प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया और फैक्ट्री को भी सील कर दिया। शहर में हॉस्पिटल से इकट्ठा किया जाने वाला प्लास्टिक का फुजला प्लास्टिक दाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए पहले भी कार्रवाइयां की गयी, मगर ये माफिया बाज न आया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी ने बंद रोड पर मौजूद प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा, जिससे बड़ी मिकदार में हॉस्पिटल का फुजला पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फैक्ट्री को सील करके हॉस्पिटल का फुजला भी कब्जे में ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी का कहना है कि ये माफिया अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा, जिनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। कोरोना वायरस की वजह से बिजली के सार्फिन को मिलने वाला रिलीफ वबाले जान बन गया। लेस्को ने एक साथ की सूरत में बिल जमा करवाने वाले सार्फिन को नादहिंदा करार देकर कनेक्शन मुनक़ता करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म की जानिब से लेस्को सार्फिन के लिए कोरोना रिलीफ वबाले जान बन गया है। कंपनी ने 3 माह तक एक साथ की सूरत में बकाया जात को रवा माह के बिलों में शामिल कर लिया है। बकाया जात शामिल करके एक साथ में जमा करवाने वाले सार्फिन को नादहिंदा करार दे दिया गया है। लेस्को ने नादहिंदा करार देने पर रिकवरी के लिए लेस्को ने कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस के दौरान वज़ीर आज़म ने सार्फिन को एक साथ में बिलों की अदायगी का रिलीफ दिया था। बिजली के सार्फिन के बिलों पर एक साथ की सूरत में रिलीफ दिया जा रहा था। ताहम लेस्को ने वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना रिलीफ अचानक खत्म कर दिया है। कंपनी ने रिकवरी में बेहतरी न आने पर रिलीफ को खत्म करके बकाया जात शामिल कर दिए हैं, जिसकी वजह से हजारों रुपए इजाफी बिलों की अदायगी मुश्किलात का बायस बन रही है। 15 सितंबर से सरकारी यूनिवर्सिटीज खोलने की पॉलिसी फाइनल। यूनिवर्सिटीज में एमफिल, पीएचडी और बीएस ऑनर्स 7वें सेमेस्टर के तलबा के लिए क्लासेस होंगी। एचईसी की हिदायत पर सिर्फ 30% तलबा को यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा। पहले मरहले में यूनिवर्सिटीज में एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स के लिए 15 सितंबर से क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटीज में बीएस ऑनर्स के पहले और 7वें सेमेस्टर की क्लासेस होंगी। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और छठे सेमेस्टर की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल सिर्फ एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स के लिए खोले जाएंगे। आइंदा साल जनवरी में यूनिवर्सिटीज के दीगर सेमेस्टर्स के तलबा की क्लासेस का इजरा होगा। एमफिल, पीएचडी स्कॉलर्स और 7वें सेमेस्टर के अलावा दीगर तलबा यूनिवर्सिटी में दाखिल होने पर पाबंदी आयद होगी। राजी रिकॉर्ड सेंटर में करोड़ों के घपले। जिले सतह पर की जाने वाली इंक्वायरी में सरकारी खजाने को 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा का नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है। PLRA करप्ट अनासिर के खिलाफ मुतहरिक है। कार्रवाई के लिए डीजी एंटी करप्शन को भी मरासला लिख दिया गया है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियां सामने आने पर डीजी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मौज़म इकबाल सिपरा मुतहरिक हो गए। मुख्तलिफ अजला के अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में माली बेज़ाब्तगियों से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। जिले सतह पर की जाने वाली इंक्वायरी के मुताबिक सरकारी खजाने को 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुँचाया गया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने माली बेज़ाब्तगियों में मुलविस अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल करके पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर रखा है, जबकि मजीद कार्रवाइयों के लिए डीजी एंटी करप्शन को भी मरासला लिख दिया गया है,
जिसमें कहा गया है कि दौरान चेकिंग अराजी रिकॉर्ड सेंटर मुरीद के लाहौर डिवीजन और जलालपुर पीरवाला मुल्तान में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां सामने आई। अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में की जाने वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफर में जाली कैश पेमेंट रसीदें लगाई गई। जाली कैश पेमेंट रसीदें लगाकर सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। करप्शन में मुलविस अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल करके इंक्वायरी का अमल जारी है। सिर्फ शेखोपुरा में जिले सतह पर की जाने वाली इंक्वायरी में ये बात सामने आई कि जाली रसीदें लगाकर सरकारी खजाने को 1,20,53,000 का नुकसान पहुंचाया गया। अब बात करें कोरोना वायरस के हवाले से तो केसेस की तादाद में कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 18 और पंजाब भर में कोरोना के 72 केसेस सामने आए। कोरोना वायरस की शिद्दत में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 28 नए केसेस सामने आए और लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 49,091 हो चुकी है। जबकि शहर में डेंगू का खतरा भी बदस्तूर बरकरार है। दौरान सर्विलेंस 14 मकामात से डेंगू लार्वे की तस्दीक हुई है। इंसदादी डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सीईओ, हेल्थ असिस्टेंट कमिश्नर्स, डीडीएचओ समेत मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर रायबंड अदनान रशीद ने यूसी 116 जौहर टाउन का दौरा किया। एक घर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ेशान नसरुल्ला रांझा ने यूसी 211 फैसल टाउन सी ब्लॉक में टीम नंबर 3 की कारकर्दगी को चेक करने के लिए दौरा किया। दौरान सर्विलेंस 2 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने यूसी 55 अजीज भट्टी जोन का दौरा किया। सर्विलेंस का जायजा लिया। 8 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ जिसको फौरी मौके पर तल्फ किया गया। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने हिदायत दी कि शहर में इन और आउटडोर सर्विलेंस को मजीद तेज किया जाए। हॉट स्पॉट्स की बाकायदगी से चेकिंग की जाए। डेंगू मुहिम में गफलत बरतने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से आईजी पंजाब इनाम गनी की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि पुलिस समेत तमाम इदारों को सियासी मुदाखलत से पाक कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से आईजी पंजाब इनाम गनी ने मुलाकात में अमन अमान समेत दीगर उमूर पर बातचीत की। आईजी ने गवर्नर पंजाब को अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि हम इदारों की मजबूती पर यकीन रखते हैं, इदारों को सियासत से पाक कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने आईजी को हिदायत दी हैं कि सूबे में अमन अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब को सरमायाकारों के लिए सबसे बेहतरीन सूबा बनाया। सरमायाकारों की सहूलत के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया। एक छत तले फराहम करदा सहूलियात के हौसला अफजा नतायज सामने आ रहे हैं। सरमायाकारी के लिए कोई फाइल ताख़ीर का शिकार नहीं होगी। कारोबारी सरगर्मियाँ तेज करने के अमल में किसी को रुकावट नहीं डालने दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने तामीराती शोबे के लिए शानदार पैकेज भी दिया। तामीराती शोबों से मुतल्लिका इजाज़त नामों के हुसूल के लिए 1 विंडो सिस्टम मुतारिफ कराया। उन्होंने कहा कि तामीराती शोबे से मुतल्लिका खदमात के NOC के इजरा के लिए टाइम फ्रेम भी मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार रिहाइशगाह पर जाकर उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मोहसिन गुराया की रिहाइशगाह पर जाकर उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मोहसिन गुराया से वालिद के इंतकाल और सौगवार ख़ानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। सूबाई वज़ीर स्पेशल एजुकेशन पंजाब चौधरी मोहम्मद इकबाल और MPA शाहिदा अहमद का नूर थैलेसीमिया सेंटर का दौरा। थैलेसीमिया के बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन की जानिब से थैलेसीमिया के बच्चों को खून अतिया करने का सिलसिला जारी है। सूबाई वज़ीर स्पेशल एजुकेशन चौधरी मोहम्मद इखलाक और MPA मिसेज शाहिदा अहमद ने नूर थैलेसीमिया सेंटर का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने थैलेसीमिया के बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए और थैलेसीमिया सेंटर में लैब का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि थैलेसीमिया को कंट्रोल करने के लिए निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजिम करने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमने आपके ये मीडिया टॉक से पहले मीटिंग की है। हम इसके लिए लेजिस्लेशन करवाने जा रहे हैं। ये बैक इन 2011-12 में मैंने प्रपोज़ल दी थी जब मैं MPA था, लेकिन उसके बाद वो डुअल नेशनलिटी की वजह से मेरी मेंबरशिप ना रही। ये बड़ा सिंपल टेस्ट है। उस ज़माने में तो 500-700 रुपये का था, आजकल ये मेरा इतना ही होगा 1000-1500 का। अगर ये सारे पेरेंट्स शादी से पहले बच्चे और बच्ची का टेस्ट करवा लें तो ये रोकथाम इन बच्चों की इस तरह ही हो सकती है। वरना अभी तक इस थैलेसीमिया का
दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इस मौके पर डॉक्टर हसीब ने ब्लड बैंक और सेंटर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर्स नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन सजाद अहमद चीमा और अहमद वकास रियाज भी मौजूद थे। थैलेसीमिया के बच्चों ने कहा कि सेहतमंद अफराद ज़्यादा से ज़्यादा खून का अतिया दें ताकि हम जैसे बच्चे भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। ब्लड लगा था, हमें गिफ्ट भी मिले थे हमें, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हेल्दी लोग हैं हमें ब्लड भी डोनेट किया करें, हमें ब्लड के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। हम यहाँ ब्लड लगाना आया, हमें गिफ्ट भी मिले हैं, और मेरा मैसेज है कि जो भी हेल्दी लोग हैं वो ब्लड डोनेट किया करें। सेहतमंद अफराद अगर अपने खून का अतिया नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन जैसी तंजीमों को देना शुरू कर दें तो थैलेसीमिया के बच्चों को भरपूर जिंदगी जीने का मौका मिल सकता है। कैमरामैन जाफर भट्टी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के एजाज में एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से चाय का एहतमाम किया गया। बरवक्त इंसाफ के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के एजाज में एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने चाय का एहतमाम किया। इस मौका पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लॉ अफसरान को कानून फलसफे की किताबें और स्वाने हयात पढ़ने की तलकीन की। उनका कहना सोच होगी तो मामलात खराब होंगे। लॉ अफसरान हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, आपने कानून के मुताबिक अदालत की मावनत करनी है। Government brief also. It should not happen that because of your laxity, the government loses the case. At least we should be fully familiar with all the facts of the case and also the law that has applies to the case. एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लॉ अफसरान मेहनती और काबिल हैं। हर लॉ ऑफिसर अदालत की कानून के मुताबिक मावनत कर रहा है, अदालतों का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि इन लॉ अफसरान में से भी हाई कोर्ट के जजेस लिए जाने चाहिए। हमारे ये सब एडिशनल एडवोकेट जनरल्स और सम सीनियर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो एनरोल्ड हैं, इवन अदरवाइज इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में होने वाली तकरीब में एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद शान गुल, राजा मोहम्मद आरफ, पंजाब हुकूमत के सीनियर लॉ ऑफिसर जवाद याकूब, एडिशनल एडवोकेट जनरल राना शमशाद अली, मलिक अब्दुल अजीज, उमैर न्याजी, मलिक अख्तर जवेद और अनीस हाशमी समेत दीगर लॉ अफसरान शरीक हुए। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज की आज दूसरी बरसी है। बेगम कुलसूम नवाज 2 साल कबल कैंसर की वजह से लंदन में इंतकाल कर गई थी। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की अहलिया और साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज की आज दूसरी बरसी है। बेगम कुलसूम नवाज 29 मार्च 1950 को लाहौर में पैदा हुई। बेगम कुलसूम नवाज ने 1970 में उर्दू में मास्टर किया। उनकी अप्रैल 1971 में मियां नवाज शरीफ से शादी हुई। बेगम कुलसूम नवाज को 3 दफा खातून अव्वल बनने का एजाज हासिल हुआ। नवाज बाहिम्मत और बहादुर खातून थीं। जब मियां नवाज शरीफ जिला वतन हुए तो बेगम कुलसूम नवाज अमली तौर पर सियासी मैदान में आई। 1999 से 2002 तक पार्टी सदर रही। उन्होंने मुश्किल दौर में पार्टी को मुनज़्ज़म किया। एक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जब 2017 में नाअहल हुए तो उनकी नशिस्त पर बेगम कुलसूम नवाज ने इलेक्शन लड़ा। अगरचे वो खुद कैंसर की वजह से ज़ेरे इलाज थी, उनकी बेटी मरियम नवाज ने उनकी इंतखाबी मुहिम चलाई और इलेक्शन में कामयाब हुई। बेगम कुलसूम की खिदमात का एतराफ उनके मुखालिफिन भी करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जब वो बिस्तरे मर्ग पर थीं तो उस वक्त कुछ मुखालिफिन ने उनकी बीमारी का मजाक भी उड़ाया। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जब अदालत की जानिब से सजा हुई तो बेगम कुलसूम नवाज को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज वतन वापस आ गए। लेकिन बहादुर खातून बेगम कुलसूम नवाज 11 सितंबर 2018 को इंतकाल कर गयी। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि बेगम कुलसूम नवाज की सियासी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। कैमरा टीम के हमरा उमर असलम, सिटी 42। पीसीबी ने कौमी क्रिकेट कंफर्म कर दिया है। दौरे में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। दौरा इंग्लैंड की तरह दौरा न्यूजीलैंड में भी 30 से 35 खिलाड़ी भिजवाए जाएंगे। दौरा न्यूजीलैंड भी आईसीसी के कोरोना एसओपीज के तहत होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम को न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस मैचेस और प्रैक्टिस के लिए बॉलर्स नहीं मिलेंगे, इसलिए प्रैक्टिस मैचेस न होने के बायस इजाफी खिलाड़ी न्यूजीलैंड भिजवाए जाएंगे। दौरे के बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान करंट न्यूजीलैंड करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।